Hello children, today we are going to recite a new poem. It's called Hayavatha. How to pronounce this? Hayavatha, Hayavatha, Hayavatha. Okay. So what is Hayavatha? Hayavatha is nothing but a name. नाम है किसी का Hayavatha. Okay. So I am just going to read out this poem for you. Let me tell you, this is not at all a musical poem. So we have to read it like this only. And in this video, I am just going to tell you how to read this poem. That's it. And in the next video I'll tell you how to understand this poem. I'll be giving you explanation of this poem. All right, so let's start. Hayavatha. Hayavatha was a young Red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Nokomis taught Hayavatha about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals, and many other things. Hayavatha grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals and they to him. Then the little Hayavatha learned of every bird its language. Okay, now let me tell you how to recite this poem. Then the little Hayavatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hayavatha's chickens. Once again, then the little Hayavatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hayavatha's chickens. Listen to me children, this is not at all a musical poem. So you have to recite like this only, okay? Because this is not at all a musical poem, so there is no chance of inventing some rhythm. कोई chance नहीं है इसमें rhythm invent करने का, तो इसी तरह आपने इसको pronounce करना है. Of all beasts, he learned the language, learned their names and all their secrets. How the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hayavatha's brothers. Okay, so once again, of all beasts he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hayavatha's brothers. Okay children, so this is how we have to recite this poem. So this is just poem recitation, and in the next video I am going to explain you this poem fully along with meaning of new words. Okay, this is how you have to recite it. This poem is by a famous poet H.W. Longfellow. Okay, so this poem is about a Red Indian boy. His name is Hayavatha. So I am going to explain you this in the next video. Hope you have understood how to recite this poem. Hope you have understood how to pronounce each and every word of the poem. Hello children, today I am going to explain you this poem called Hayavatha. Okay, in the last video I have told you how to recite this poem. Now I am going to explain each and every word of this poem. Okay, so let's start. Hayavatha. Hayavatha was a young Red Indian boy. जो Hayavatha था ना, वो एक छोटा सा और रेड इंडियन बॉय था. रेड इंडियन बॉय जो होते हैं ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, आदिवासी होते हैं एक तरीके के रेड इंडियंस, ठीक है, वो लड़का था छोटा सा रेड इंडियन बॉय, ठीक है, Hayavatha, ठीक है. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, वो अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहता था. उसकी दादी माँ का नाम था नोकोमीस, ठीक है. कहाँ रहता था? इन अ विगवॉम. बेटा ये आपके लिए न्यू वर्ड है, विगवॉम. विगवॉम क्या होता है? डोम शेप्ड हट, ठीक है, जो डोम के जैसी शेप की डोम शेप की हट होती है ना, उसको बोलते हैं आपका विगवॉम, या टेंट होता है, ठीक है, एक घर बनता है जैसे आपको देखो पिक्चर में दिख रहा है ना ऊपर, ठीक है. इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आपका विगवॉम, ठीक है. जो ये आपको ऊपर ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है, एक टेंट या एक हट जो ऐसे डोम शेप्ड होती है, उसको बोलते हैं विगवॉम. रेड और ब्लू कलर से दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे लिखा है Hayavatha और एंजॉय दिस पोएम जहाँ पे लिखा है, ठीक है. तो विगवॉम में वो रहते होते हैं. नोकोमीज टॉट Hayavatha अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. जो नोकोमीज होती है ना, वो Hayavatha को उसने क्या सिखाया होता है? जो उसके आसपास जो अजूबे हैं, वंडर्स होते हैं, अजूबा, कुछ डिफरेंट चीज़,
कोई यूनिक चीज़ जो भी उसके आसपास हायावाता के आसपास जो अजूबे हैं, जो अजीबोगरीब चीज़ें हैं ना, उनके बारे में सब कुछ सिखाया होता है नोकोमीज़ ने। किसको? हायावाता को। बेटा जो ये रेड इंडियंस या ट्राइब्स होते हैं ना, थोड़े जंगली टाइप होते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की तरह सिविलाइज्ड नहीं होते हैं ये। हम लोग जैसे बात करते हैं, जैसे खाते हैं, जैसे पहनते हैं कपड़े, देखो हायावाता के कपड़े भी कैसे हैं, ट्राइबल्स जैसे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ना बैकवर्ड होते हैं। तो ये जानवरों के बीच में ही रहते होते हैं, जानवरों को समझते हैं, उनकी लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। तो शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। बेटा देखो जो नोकोमीज़ होती है ना, उसने हायावाता को क्या क्या सिखाया होता है। जो उसकी ग्रैंड मदर होती है ना हायावाता की नोकोमीज़, उन्होंने उसको सिखाया होता है, बताया होता है स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में, ट्रीज़ के बारे में मतलब पेड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स मतलब जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनके बारे में, बर्ड्स जो आपके पक्षी होते हैं, एनिमल्स जो आपके ये जानवर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बताई होती हैं हायावाता को उसकी ग्रैंड मदर नोकोमीज़ ने, ठीक है। हायावाता ग्रू अप टू लव देम ऑल, और जब जैसे जैसे हायावाता बड़ा होता है ना, और वो बड़े होते होते उन सारी चीज़ों से प्यार करने लगता है क्योंकि वो उसके अराउंड होती है, उनके बारे में जानता होता है। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू हिम। अब देखो वो एनिमल्स के बीच ही पला बड़ा है, एनिमल्स और बर्ड्स के, तो वो ना एनिमल्स से बात करता हो सकता है, बर्ड्स से बात करता हो सकता है। एनिमल बर्ड्स की अलग ही लैंग्वेज होती है ना, तो वो अंडरस्टैंड कर सकता होता है उनको, और वो भी उससे बात करते हैं। ऐसा ऐसा लगता है, एक्चुअली में बोलते नहीं है एनिमल्स और बर्ड्स, बट उनकी भी अलग भाषा होती है ना, तो वो समझ जाता है कि एनिमल्स बर्ड्स क्या कहना चाहते हैं, और वो एनिमल्स बर्ड्स उसकी भी भाषा समझ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। देन द लिटिल हायावाता लर्न टू एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, ठीक है। अब ये शुरू हो रही है पोएम कि अब तब क्या होता है, तब जो है लिटिल हायावाता वो क्या करता है, उस सीख जाता है हर बर्ड की लैंग्वेज को, ठीक है। हर बर्ड की लैंग्वेज को हायावाता समझने। अब देखो भाई बेटा, हायावाता जो है, हर लिटिल हायावाता जो छोटा सा हायावाता है, अभी छोटा बच्चा ही है, ठीक है, वो हर बर्ड की लैंग्वेज समझने लगता है, भाषा समझने लगता है। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर, वेयर दे हिड देमसेल्व्स इन विंटर। अब हायावाता ये भी समझ जाता है कि हायावाता को उनके नाम याद हो जाते हैं कि क्या क्या नाम है बर्ड्स के, और उनके क्या क्या सीक्रेट्स हैं, क्या क्या उनकी ऐसी बातें, खुफिया बातें, ठीक है, जो किसी को नहीं बताते। उनको बोलते हैं ना सीक्रेट्स, उस चीज़ को बोलते हैं जो हम किसी को नहीं बताते, जो एक राज होता है। उनके सारे राज जान लेता है, उनके नेम्स जान लेता है बर्ड्स के। कैसे बर्ड्स अपना नेस्ट जो है, अपने नेस्ट मतलब अपने जो घोंसले हैं वो समर में बनाते हैं, और कैसे वो अपने आप को छुपा लेते हैं, ठीक है। कब? विंटर्स जब आते हैं, विंटर्स में जब ठंड लगती है तो बर्ड्स अपने को छुपा लेते हैं। तो लिटिल हायावाता जो है वो समझ जाता है ये सारी चीज़ें कि कैसे बर्ड्स, उनकी लैंग्वेज समझ जाता है बर्ड्स की, बर्ड्स के नेम्स जान जाता है, उनके सीक्रेट समझ लेता है, ठीक है। और कैसे वो अपने नेस्ट बिल्ड करते हैं समर में, कैसे वो अपने को छुपा लेते हैं विंटर में। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, और जब जब उनसे मिलता है ना बर्ड्स से, देम मतलब यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया? बर्ड्स के लिए, ठीक है। और ये क्या है? वेन एवर है ये, ठीक है। ऐसे ई के ऊपर अपोस्ट्रोफे लगता है और फिर ई आ रहा है, वो वी के लिए लगता है, ठीक है, अपोस्ट्रोफे जो लगता है। तो वेन एवर है, जब जब उनसे मिलता है तो उनसे बातें करता है, किन से? बर्ड्स से। कॉल देम हायावातास चिकन्स, और उनको बर्ड्स को कहता है ये हायावातास के चिकन है। हायावातास मतलब हायावाता के चिकन्स है, हायावाता को बिलोंग करते हैं, ये मेरे चिकन्स है, हायावाता के चिकन्स हैं ये, ठीक है। उनको अपना समझता है क्योंकि उनके बीच ही पला बड़ा है हुआ है, ठीक है। छोटा सा हायावाता जो है बर्ड्स की लैंग्वेज को समझने लगा है, समझता है, ठीक है। उनके नामों को जानता है, ठीक है। उनके सीक्रेट्स जानता है, विंटर में कहाँ छुपते हैं, समर्स में कहाँ कैसे घोंसला बनाते हैं, ठीक है। और जब जब उनसे मिलता है तो उनसे बातें करता है और उनको क्या बोलता है? हायावातास चिकन्स। चलो आगे चलते हैं, पेज नंबर 109 पे। ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। बीस्ट होते हैं आपके एनिमल्स, ठीक है। बीस्ट मतलब एनिमल और बीस्ट मतलब एनिमल्स, ठीक है। जितने भी बीस्ट होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उसने हायावाता ने उनकी लैंग्वेज को क्या कर लिया है? सीख लिया है। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उनके सबके नाम जान लिए हैं और उनके सबके राज जान लिए हैं, ठीक है। वो क्या क्या छुपा रहे हैं, क्या क्या राज है उनके, वो सब जान लिए हायावाता ने, ठीक है। जो एक नॉर्मल इंसान नहीं जान सकता, क्योंकि ये तो एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में पला बड़ा है, इसलिए इसको सारे उनके सीक्रेट्स पता हैं।
हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस। बेटा बीवर्स क्या होते हैं आपके बेसिकली रॉडेंट्स होते हैं। रॉडेंट्स होते हैं चूहे जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी पूंछ वाले होते हैं, ठीक है, ब्रॉड टेल्ड रॉडेंट्स आप कह सकते हो, उनको बीवर्स कहते हैं, ठीक है। वो अपने लॉजेस कैसे बनाते हैं, लॉजेस मतलब रहने की जो जगह है उनकी, ठीक है, बिल वगैरह जो बनाते हैं वो, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, लॉजेस होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, लिविंग प्लेस अपना कैसे बनाते हैं, घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकॉन्स, और स्क्विरल्स जो होती है, गिलहरियाँ जो होती है, वो कहाँ पे अपना अकॉन्स छुपाती है। अकॉन्स क्या होते हैं आपके, एक नट होता है, एक तरीके का फ्रूट होता है, ओक ट्री के फ्रूट को बोलते हैं हम, ठीक है, अकॉन्स, ठीक है। तो वो ये भी जान गया है कि कहाँ पे बीवर्स अपने लॉजेस बनाते हैं, कहाँ पे मतलब जो मोटी पूंछ वाले चूहे अपने घर बनाते हैं, कहाँ पे स्क्विरल्स यानी गिलहरियाँ अपने अकॉन्स को छुपाते हैं। कॉन्स होते हैं आपके उसको हिंदी में बोलते हैं आपका बलूत का फल, ठीक है, मतलब एक फ्रूट होता है ओक ट्री का, उसको बोलते हैं आपका बलूत का फल या अकॉन्स, ठीक है। हाँ, वो जो खाती है ना स्क्विरल्स, वो कहाँ छुपाती है, ठीक है, वो नट्स, वो भी पता चल गया है इसको। हाँ है बात तक वो सब कुछ जान गया है ना बेटा, ये एनिमल्स बर्ड्स के बारे में, उनके साथ ही रहता है हरदम, ठीक है। हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, ठीक है। अब आगे और क्या क्या जान गया है, वाता जान गया है कि रेनडियर्स जो हैं बेटा, है वाता जान गया है कि जो रेनडियर्स है ना वो इतना तेज़ी से क्यों भागते हैं, ठीक है। रेनडियर्स आपके एक तरीके के वो होते हैं डियर, ठीक है, आपके हिरन होते हैं एक तरीके से। तो यह बात जान गया वो इतना तेज़ी से क्यों भागते हैं, ठीक है। वाई द रैबिट वो सो टिमिड, और जो आपका खरगोश है वो इतना डरपोक क्यों था, ये भी जान गया है वो हायवाता, ठीक है। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, और वो उनसे हमेशा बात करता है जब भी उनसे मिलता है, ठीक है। और कॉल देम हायवातास ब्रदर्स, और उन्हें क्या कहता है कि वो हैं हायवाता के ब्रदर्स, भाई हैं हायवाता के, क्योंकि उन्हीं के साथ वो पला बड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया है सबको आपको अच्छे से। तो आपके लिए न्यू वर्ड्स है इसमें विगवैम, ठीक है, विगवैम मैंने आपको बताया डोम शेप्ड हर्ट और टेंट को बोलते हैं। देन बीवर्स, बीवर्स आपके मैंने बताया था ब्रॉड टेल्ड रॉडेंट्स या चूहे हैं। अकॉन्स आपके जो ओक ट्री का फल है, ठीक है, फ्रूट है। रेनडियर आपके एक तरीके के डियर होते हैं, हिरन। रेनडियर्स आपके डॉग्स भी होते हैं जो आपके स्नो एरियाज में मिलते हैं, बट यहाँ पे आपके रेनडियर्स डियर है। देन टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, समवन हु गेट्स फ्राइटेंड ईजिली, समवन हु गेट्स स्केयर्ड ईजिली इज कॉल्ड टिमिड, ठीक है। तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक। तो ये आपके न्यू वर्ड्स हैं, और ये HW लॉन्गफेलो ने आपकी पोएम लिखी है। आई होप आपको हायवाता पोएम अच्छे से सबको क्लियर हो। चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हायवाता, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज हायवाता। सो हायवाता वॉज ए यंग रेड इंडियन बॉय, फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है आपको इसका आंसर। हायवाता कौन था, हायवाता एक रेड इंडियन यंग एक छोटा रेड इंडियन लड़का था, ठीक है। रेड इंडियन एक तरीके के आदिवासी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हु वॉज नोकोमी, नोकोमी कौन थी, नोकोमी वॉज हायवाता's ग्रैंडमदर, नोकोमी कौन थी, हायवाता की दादी, ठीक है। देन व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में हायवाता ने क्या सीखा था, उनके नेम्स और सीक्रेट्स, ठीक है, कैसे वो अपने नेस्ट बनाते थे समर में और कैसे वो छुपाते थे खुद को विंटर्स में, ये सीखा था ना हायवाता ने, वो है ना आपका दिया हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में ही दिया हुआ है कि हायवाता ने क्या सीखा था बर्ड्स के बारे में, क्या जानता था वो, ठीक है। हायवाता लर्नड अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। ड्यू टू दिस ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट बर्ड्स सच एज देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, हाउ दे बिल्ड their nest in summer and where they hide themselves in winter. These are the things which हायवाता learned ना, ठीक है, about the birds। यही आपसे पूछ रहे हैं हायवाता ने बर्ड्स के बारे में क्या क्या सीखा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। ज़रूरी नहीं आप ये आंसर्स लिखें, दीज आर जस्ट मॉडल आंसर्स, ठीक है। ये आपको एक स्टैंडर्ड आंसर्स बताए गए हैं कि आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली यही लैंग्वेज लिखनी है, यू कैन यूज़ योर ओन वर्ड्स, ठीक है। आई अप्रिशिएट दैट इफ़ यू यूज़ योर ओन वर्ड्स एंड यू विल फ्रेम योर ओन आंसर्स, फाइन। तो ये तो हमारे फर्स्ट 3 आंसर्स हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे चल। Now children we have fourth question, what secrets did he learn about beasts? beast होते हैं आपके एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में हायवाता ने क्या सीक्रेट सीखा। हायवाता लर्न द लैंग्वेज ऑफ बीस्ट, सबसे पहले तो हायवाता ने जो बीस्ट हैं यानी एनिमल्स हैं उनकी लैंग्वेज को सीखा।
ड्यू टू दिस ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द बीज, और इसी वजह से, क्योंकि उससे लैंग्वेज आती थी एनिमल्स की, वो क्या क्या सीख पाया, देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, उनके नाम क्या क्या हैं और उनके क्या क्या राज हैं, क्या क्या सीक्रेट्स हैं। हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, कैसे जो बीवर्स हैं, मोटी पूंछ वाले चूहे जो हैं, अपने लॉजेस कैसे बनाते हैं, अपने घर कैसे बनाते हैं, अपने बिल कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकॉर्न्स, और आपके जो गिलहरियाँ हैं वो अपने अकॉर्न्स को कहाँ छुपाती है, अपने ओक नट के फ्रूट को कहाँ छुपाती है। हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, और कैसे जो हिरन है वो तेज़ 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 भागता है, ठीक है, स्विफ्टली होता है क्विकली, ठीक है। एंड वाई वॉज द रैबिट सो टिमिड, और साथ ही साथ वो ये जान पाया कि जो खरगोश है वो इतना डरपोक क्यों था, ठीक है, वॉज है ना तो था आएगा, तो ये सारी चीज़ें वो इसलिए जान पाया क्योंकि उसको बीस्ट यानी एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बर्ड्स के बारे में कैसे जान पाया, बर्ड्स की लैंग्वेज आती थी, और बर्ड्स के बारे में जान पाया कि कहाँ छुपाते थे खुद को विंटर्स में, समर में नेस्ट कहाँ बनाते थे, और उनके सीक्रेट्स जान पाया, और एनिमल्स के बारे में ये सारी चीज़ें वो जान पाया, ठीक है। तो आपने ये एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, डू यू थिंक दैट हायावाता लाइक्ड लर्निंग न्यू लैंग्वेज, आपको लगता है ऐसा कि हायावाता को नई भाषा सीखने का शौक था, उसे नई भाषा सीखना पसंद था। येस, हायावाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेज, तभी तो वो बर्ड्स एनिमल्स की लैंग्वेजेस समझ पाया था, उसको नई नई भाषाएं सीखने का शौक था। Hiawatha called the birds chicken and bees brothers. Why do you think, what do you think this shows? अब देखो हायावाता ने जो बर्ड्स थे उसको अपना चिकन कहा था, हायावाता's चिकन, और जो बीस थे एनिमल्स थे उनको हायावाता का ब्रदर बोला था। ऐसा हायावाता ने क्यों किया था? This shows that Hiawatha was kind and loving towards birds and bees. He considered them as his family members. इससे पता चलता है कि जो हायावाता था वो काइंड था, दयालु था और लविंग था, बहुत प्यार करता था, बहुत स्नेह था उसके मन में, बहुत प्रेम था किसके टूवर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स के टूवर्ड्स, बीस्ट के टूवर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स के टूवर्ड्स, ठीक है। बीस्ट होता है एनिमल्स, और वो उनको अपना फैमिली मेम्बर कंसीडर करता था, इसलिए उसने कहा हायावाता's चिकन्स एंड हायावाता's ब्रदर्स, ठीक है। डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स, आपको लगता है बर्ड्स के राज होते हैं? येस, बर्ड्स डू हैव सीक्रेट्स, क्योंकि बर्ड्स भी बड़े छुपे रुस्तम होते हैं, ठीक है। बर्ड्स के भी अलग अलग सीक्रेट्स होते हैं जो केवल हायावाता ही जान पाया था, क्योंकि उनके साथ रहता था वो हर पल, ठीक है, क्योंकि हायावाता उनके साथ रहता था इसलिए उनके सीक्रेट्स जान पाया, ठीक है। जिसके साथ हम रहते हैं उसकी लैंग्वेज, उसके सीक्रेट्स हमें पता चल जाते हैं ना। सिमिलरली हायावाता को बर्ड्स और एनिमल्स के सीक्रेट्स पता चल गए थे। अब से अलाउड आपको ये वर्ड्स जो हैं लाउडली बोलने हैं। स्क्विरल, 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 क्वेरल, 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 क्वीन, 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 क्विक, 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 क्विल्ट, क्विल्ट, quilt, quill, 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 quiet, 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 quality, 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 ठीक है। तो ये आपके क्यू से और एस से एक वर्ड है, बेसिकली आपको क्यू ये साउंड आपको ये बताना चाहते हैं कैसे, ठीक है। तो क्यू वाला जो साउंड है आपका कैसे आता है? स्क्विरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल्ट, क्विल, क्वाइट एंड क्वालिटी, 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 ठीक है। तो ये वर्ड्स आपने बार बार बोलने हैं। अब नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है, हैव यू सीन अ हिपोपोटेमस इन अ हैट, कभी आपने देखा है हिपोपोटेमस को हैट पहने हुए? हैट में देखा है हिपोपोटेमस को हैट पहने हुए, ठीक है। हिपोपोटेमस जो होता है दराई घोड़ा होता है आपका, उसको अभी हैट पहन देखा? नो, ठीक है। फैंटिसाइज करवा रहे हैं आपसे, इमेजिन करवा रहे हैं कि अभी आपने ऐसा देखा है नहीं। हैन इन अ बीहाइव, बीहाइव होता है वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें कभी आपने हैन को देखा है? नो, ठीक है। ठीक है। अ हेलीकॉप्टर विद हेयर, ऐसे देखा कि हेलीकॉप्टर के बालू? नो, ठीक है। और अ हॉर्स ड्रिंक हनी, किसी घोड़े को आपने शहद पीते हुए देखा है? नो, ठीक है। तो ये बड़ी अनयूजुअल चीज़ है, तो हम क्या बोलेंगे? नो, 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 सब में आपका आंसर आएगा नो, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है। जैसे यही वाली स्टोरी है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय कॉल्ड, ठीक है। हम नाम रख लेंगे, जैसे उसका नाम है राकेश,
He lived with his grandmother. She told him the stories of animals. He learned the language of animals. He became aware of their names and secret. जो भी हैवत है उसकी जगह राकेश राकेश लगा देंगे, ही लगाते चले जाएंगे. He came to know about many things about birds and learned how they build their nest in summer, how they hide themselves in winter. आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है. मिस्टेक होगी थोड़ी सी लिखने में. About bees he learned how bees build their houses, where the squirrels hid their food, and how the deer ran so swiftly. Why the rabbit was so timid. ठीक है. Rakesh called birds and bees chickens and brothers respectively. Whenever he met them, he used met आएगा यहाँ पे. Whenever he met them, ठीक है, he used to talk to them in their languages. तो जहाँ जहाँ हैवाता है वहाँ राकेश लगा देंगे बस. बेसिकली हैवाता की स्टोरी की जगह किसी और लड़के की स्टोरी है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वेयर टू द फॉलोइंग लिव. अब ये सब कहाँ रहते हैं? बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स लिव इन नेस्ट, सबको पता है, घोंसलों में रहते हैं बर्ड्स. रैबिट्स लिव्स इन अंडरग्राउंड बरोज और वॉरन्स. ठीक है. रैबिट्स जो है अंडरग्राउंड उसमें होल में रहते हैं. बरो तो आपका गड्ढा, ठीक है, गड्ढों में रहते हैं. वॉरन्स में रहते हैं गड्ढे, पिट्स, बरो, होल सब जो है वो आपके गड्ढे ही होते हैं. ठीक है. देन बीवर्स लिव इन. बीवर्स का रहते हैं लॉजेस. आपने पढ़ा था मेड इन पोन्ड्स. जो पोन्ड्स होते हैं आपके पानी के, उसमें जो छोटे छोटे से घर बना के या गड्ढे बना के आपके बीवर्स रहते हैं. चूहे रहते हैं मोटी पूंछ वाले, रॉडेंट्स भी बोलते हैं उनको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब हैवाता, हिज होम एंड हिज फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स. आपने हैवाता को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना हैवाता कैसा था, उसका घर कैसा था और उसके दोस्त कैसे थे. पहला लाइन है हैवाता वॉज अ यंग लिटिल रेड इंडियन. पर छोटा सा रेड इंडियन लड़का था हैवाता. यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रैंडमदर कॉल्ड नोकोमीस. और जो हैवाता था वो किसके साथ रहता था? उसकी ग्रैंडमदर, उसकी दादी के साथ रहता था, जिनका नाम क्या था? उसकी दादी का नाम क्या था बच्चों? उसकी दादी का नाम था नोकोमीस. तो आपने क्या लिखना है? हैवाता के बारे में, उसके घर के बारे में और उसके फ्रेंड्स, यानी जो बर्ड्स और एनिमल्स उसके फ्रेंड्स होते थे, उन सब के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है. कितने लाइन्स में? 10 लाइन्स में, 10 लाइन्स में. नेक्स्ट पॉइंट सेज ही लर्न द लैंग्वेजेस ऑफ बर्ड्स एंड बीज. उसने बर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेजेस को सीख लिया था. ही वॉज काइंड एंड लविंग बाय नेचर. वो बहुत दयालु था और लविंग था, ठीक है, नेचर से अपने. ही लिव्ड इन वैगवैम. इट वॉज अ डोम शेप्ड हट मेड बाय फास्टनिंग मैट स्किन्स और बार्क ओवर अ फ्रेमवर्क ऑफ पोल्स. वो किस में रहता था? विगवॉर्म में रहता था. विगवॉर्म कैसे बनती है? डोम शेप्ड हट होती है या फिर टेंट होता है जो मैट्स से बनता है. मैट्स होती हैं जो आपकी स्किन से बनता है या बार्क ट्री के बनता है. ठीक है. और पोल्स पे खड़ा किया जाता है, उसको डंडों पे खड़ा किया जाता है. ही कॉल्ड द बर्ड्स हैवातन चिकन्स. वो बर्ड्स को क्या कहता था? हैवाता के चिकन कहता था. ठीक है. तो ये तो आपके 6 पॉइंट्स थे और भी 4 आपने लिखने हैं, 10 लिखने. तो ये 6 पॉइंट्स हो गए. 7 पॉइंट आपका क्या हो गया? अमंग ऑल बीज बीवर्स, स्क्विरल्स, रेनडियर एंड रैबिट वर हिज बेस्ट फ्रेंड्स. और जितने भी एनिमल्स थे उनमें से बीवर्स यानी मोटी पूंछ वाला रॉडेंट या चूहा, स्क्विरल्स यानी गिलहरियाँ, ठीक है, रेनडियर यानी डियर, फास्ट रनिंग डियर होता है, रैबिट जो थे उसके कौन थे? बेस्ट फ्रेंड्स थे. हैवाता यूज्ड टू टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स व्हेनेवर दे मेट. हैवाता जो था वो क्या करता था? इसके अलावा हैवाता जो था वो एनिमल्स और बर्ड्स से मिलता था, बात करता था. ठीक है, बात करता था एनिमल्स और बर्ड्स से जब भी उन्हें मिलता था. ही केम टू नो देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. उसे उनका नाम पता चल गया, उन बर्ड्स और एनिमल्स का, और सारे के सारे उनके राज पता चल गए, उनके सीक्रेट्स पता चल गए, क्योंकि रोज़ मिल रहा था उनसे, उनकी हरकतें ऑब्जर्व कर रहा था, उन्हें देख रहा था, तो सब कुछ जान गया उनके बारे में. हैवाता यूज्ड टू कॉल बीज हिज ब्रदर्स. हैवाता जो है बीज को यानी कि जो आपके जानवर हैं उनको क्या कहता था? अपने ब्रदर्स बुलाता था. और बर्ड्स को बुलाता था हैवाता के चिकन्स. तो आपने ये 10 के 10 पॉइंट्स करने हैं. इसमें हैवाता के बारे में बताया हमने, हैवाता के घर के बारे में बताया, हैवाता के फ्रेंड्स जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनके बारे में बताया. तो यही तो चीज़ें हमसे पूछी थी ना इस क्वेश्चन में. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप ये क्वेश्चन नोटबुक में ज़रूर 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 करेंगे. ठीक है बेटा. अब आपको 2 वर्ड्स सिमिलर दिए हैं. इनको बोलते हैं होमोफोन्स, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनकी स्पेलिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इनका मीनिंग अलग अलग होता है.
तो आपने सही होमोफोन पढ़ना है, ठीक है। द बर्ड्स सिट्स ऑन अ, क्या आएगा, बो आएगा, बो आएगा, BOUGH, बो आएगा, ठीक है। द स्क्विरल हैज़ अ लॉन्ग, कौन सा टेल आएगा, TAIL, क्योंकि TALE वाला टेल का मतलब तो स्टोरी होता है, ठीक है। आई हैव टू लीव एट 2 आएगा, 2 आपका नंबर वाला आएगा। TOO2 वाला, जो TOO2 का मतलब होता है वो भी, ठीक है, साथ में कोई और चीज़ भी इंक्लूडेड है, ठीक है। दिस 2, दैट 2, इस तरह से। तो यह 2 आएगा, नंबर वाला 2 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका है दिस सन इज डैश, सन क्या है, सॉरी दिस सम है, क्या है ये सम, राइट है, RIGHT वाला आएगा, सही है, ठीक है। लिखने वाला नहीं आएगा, WRITE का मतलब है लिखना। आई कैन डैश द बर्ड सिंग, आई कैन हियर द बर्ड सिंग, हेयर नहीं आएगा, हेयर का मतलब है यहाँ, हियर क्या होता है, सुनना, ठीक है। डू यू डैश अ सीक्रेट, डू यू नो अ सीक्रेट, नो कौन सा आएगा, जानने वाला, KNOW वाला, ठीक है। देन उसके बाद द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, थ्रोन कौन सा आएगा, सिंहासन होता है थ्रोन का मतलब, और थ्रोन का मतलब, थ्रोन करने का मतलब होता है थ्रो कर दिया। आई हैव थ्रोन द बॉल, मैंने बॉल फेंक दी, एक होता है फेंकना, THROWN वाला, और THRONE का मतलब होता है सिंहासन, राजा का, ठीक है, राजगद्दी। देन ही इज़ आर स्कूल डैश, क्या आएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन सा आएगा, AL वाला आएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल कौन सा आएगा, PRINCIPAL, जो प्रिंसिपल सर या मैम होते हैं, ठीक है, उसमें PAL आता है। और जो प्रिंसिपल होते हैं मतलब लाइफ के आपके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है, किस पर आपकी लाइफ बेस्ड है, किन किन चीज़ों को आप लाइफ में मानते हो, क्या आपके आदर्श हैं लाइफ के, ठीक है, वो आपके होते हैं प्रिंसिपल, LE वाले। ये क्वेश्चन आपके मिस हो गए थे। सो व्हाट डिड हैवाता लव, हैवाता को क्या पसंद होता है, हैवाता लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और आपको अब देखो क्या बताना है, इनको कॉलम को मैच करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, व्हेनेवर आई एम हंग्री आई ईट, जब भी मुझे भूख लगती है मैं खाता हूँ, ठीक है। हुएवर कम्स फर्स्ट विंस, जो भी फर्स्ट आता है वो जीतता है, ठीक है। वेरेवर आई गो आई हैव फ्रेंड, जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे फ्रेंड्स हो जाते हैं, मैं फ्रेंड्स बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, ठीक है। तो आपका क्या है, वेनेवर जहाँ भी, हुएवर जो भी, वेरेवर फिर आपका है वेनेवर जब भी, सॉरी वेनेवर आपका होता है जब भी, ठीक है। और हुएवर होता है आपका जो भी, और वेरेवर आपका होता है जहाँ भी, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से ना। सो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको चैप्टर पोएम, सॉरी ये पोएम चैप्टर नहीं, ये पोएम समझ में आ गई होगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे और एक्सप्लेनेशन पार्ट भी, ओके।